So good morning, good afternoon, all of you. And today we are going to be discuss the effect of combined effect of bending and torsion in the shaft. So this is the last topic of this unit, in which we are going to see the combined effect of bending and torsion in shaft. So combined effect of bending and torsion, let's see if in the real situation what happened. This is a shaft. If there is a twisting moment is applied T here and P or load is acting downward, it means it's also produce an effect of bending on the shaft. So we have to be consider the both torsional moment and the bending moment, and what would be the effect we have to be see in this particular topic. So let's evaluate. We all know that the principal stress simple formula, we know that it's written here. You can see the sigma 1 sigma 2 is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus minus under root sigma y minus sigma x by 2 का whole square plus tau square. Okay, so this how this equation is applicable here. We can see they have here in this day there we have two component in the principal stress formula. One is the normal stress, another is the shear stress. So this torque, this twisting moment is responsible for to produce the shear stress. So हम इसको देख सकते हैं, shear stress यहाँ पर produce हो रहा है due to torsion moment, and one then this P load is applied over this shaft. तो उसकी वजह से यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है. सो वी कैन सी it can be produce the bending stress. Okay, and आप देख सकते हो, you can see here this is acting downward and this one is the shear stress always will act. कैसे act करता है? This the in the surface of this shaft like this. So you can see this angle always they can make the angle of 90 degrees. So they are perpendicular to each other. So we can apply here the हम यहाँ पर क्योंकि आपने देखा है in the case of principal stress, so normal stress is always acting like this and shear stress acting like this. So इस वजह से हम उसमें क्या करते थे, ये this equation is applicable for that. So अब देखिए अपन समझते हैं यहाँ ये नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मतलब y कंपोनेंट इज 0. सो यहाँ पर मान लेते हैं, देखो y कंपोनेंट x कंपोनेंट यहाँ 0 है, इस डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है. सो दिस इज 0 एंड सिग्मा y को हम y मान लेते हैं क्योंकि देयर इज सम वैल्यू ऑफ दिस p इज देयर, सम एरिया इज देयर. सो वी कैन से सो कुछ ना कुछ सिग्मा y की वैल्यू होगी एंड दैट वुड बी सिग्मा के बराबर हो गया. सो अब देखिए यहाँ और टाउ विल प्रोड्यूस बाय दिस टी, कैपिटल टी की वजह से. ठीक है. सो अब इक्वेशन में देखिए जरा, रखते हैं वैल्यू. सो सिग्मा एक्स 0 हो गया, सिग्मा वाई हो गया बाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ So dear, just we are replacing this by these values. So sigma y की जगह हम sigma रख रहे हैं, तो sigma by 2 प्लस माइनस यहाँ sigma y की जगह p रख दीजिए आप. सो इसका स्क्वायर एंड टाउ, तो टाउ है ये जो t की वजह से प्रोड्यूस होगा. सो अब देखिए यहाँ पर हमने ये कैसे लिख दिया, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं. समझिए आप, आइए. So dear, we know that m upon I, देखो जरा इधर, m upon I इक्वल टू सिग्मा upon
वाई। ये फॉर्मूला आपको पता है, मेरे को सिग्मा चाहिए इसमें से, ठीक है। हमको वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सो लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एम इंटू वाई अपान आई, ठीक है। अब देखो आई को क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो आप, एम को छोड़ दो, उसको वाई को रहने दो। यहाँ लिख सकते हो आप, आई होता है इसके लिए क्या बोलते हैं आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। तो आई इज कितना है, पाई अपान 64 डी की पावर, देखो जरा, डी की पावर 4। और इसको देखो d/2, इसका मतलब एरिया ये है, बाई का मतलब हो जाएगा बेटा, ये सरफेस में लग रहा है तो बाई यहाँ होगा, बाई को आप रिप्लेस कर दो किससे, d/2 से, d/2 से, ठीक है। तो d/2 से हम आप इसको सिंपली वी कैन रिप्लेस दिस। तो देखो क्या होगा, यहाँ मैं और अलग से लिख देता हूं। सो इट वुड बी द m, ये d/2 से ये d कैंसिल हो जाएगा, जरा देखो जरा, तो ये d की क्यूब नीचे हो जाएगा, तो ये m अपान पाई, ठीक है, 32 पाई 32 पाई/32, ये नीचे है इसके पाई/32, और ये हो जाएगा बेटा आपका d³ है ना। मैंने यहाँ स्मॉल लिख दिया, यहाँ कैपिटल, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो 32 ऊपर जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखो जरा, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा, बिल्कुल आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा 32 m अपान पाई/d³। ये हो गया सिग्मा की वैल्यू। होप यू आर अंडरस्टूड। ये हो गया बेटा सिग्मा की वैल्यू, कहां से आया, इस रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से आया, आ गया। सो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं बताऊंगा कि ये वाला टर्म कैसे आया, ये वाला। चलिए इसकी बात करते हैं, यहां तक ये लिख दिया मैंने, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। सो अब देखिए, आपको टॉर्सन इक्वेशन याद है, भी रिसेंटली पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, सो होप याद होगी। सो टॉर्सन इक्वल टू होती है टी अपान, देखो जरा, T/J इक्वल टू टाउ अपान आर, आर इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। सो हमको चाहिए टाउ, सो वी कैन राइट इट, टाउ इज इक्वल टू TR अपान J। J इज कॉल्ड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो लिख सकते हो T, R को आप लिख दो d/2, ठीक है, और J को आप लिख सकते हो पाई अपान 32, पाई/32 d की पावर 4। सो जब इसको देखो, ये 2 से ये, तो ये 16 हो जाएगा, ये 16, और ये d से 1 d से ये 3, ये हो जाएगा। तो फाइनली यू कैन राइट टाउ इज इक्वल टू 32 32 पाई/d³। सो एक रिलेशन देखो, सिग्मा इज इक्वल टू आया, नहीं बेटा यहाँ 32 नहीं है, यहाँ 16 है, कटेगा ना, तो 16 यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ 16t हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 32 m/d³ एंड टाउ इज इक्वल टू 16t, यहाँ m है, यहाँ t है, 16t/d³। सो जब देखो यहाँ रखा हमने, सिग्मा की वैल्यू क्या है, देखो जरा, 32 m/d³, ये देखो यहाँ 2 है, तो इसका 32 का वो
16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16m pi d cube plus minus under root of, same thing is happening here also, so you can write 16m pi d cube का whole square plus 16t pi d cube और इसका होल स्क्वायर। देन अब देखिए इसमें 16 पाई डी क्यूब, 16 पाई डी क्यूब सब में कॉमन है, अंदर भी है और बाहर भी, तो 16 पाई डी क्यूब हमने कॉमन ले लिया यहाँ m, और यहाँ प्लस माइनस तो फॉर्मूले का ही है, तो यहाँ भी बेटा प्लस माइनस होगा, ये छूट गया है। सो दिस वुड बी द m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t। ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला हो गया जब इवेल्युएटिंग द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड द बेंडिंग मूवमेंट ऑन द शाफ्ट। सो ये फॉर्मूला अब याद रखना है, इसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है फॉर द शाफ्ट which is subjected to both twisting and bending movement. So directly you remember sigma 1 to 16 upon pi d cube m plus minus बेटा यहाँ प्लस माइनस होगा, मिस्टेक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो इससे हम सिग्मा 1 मतलब फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस वी कैन कैलकुलेट। अब जब प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड इस पे, सो वी कैन कैलकुलेट, हम क्या और क्या उसी फॉर्मूले से तो हम ये भी निकाल सकते हैं क्या, ओरिएंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन। सो इनिशियली आपने क्या पढ़ा था, वो फार्मूला मैं फिर रिकॉल कर रहा हूं, आपको याद होगा होप सो tan थीटा इज इक्वल tan थीटा 1 इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू टाउ अपॉन सिग्मा बाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, ये था फॉर्मूला। अब अभी आपने देखा ना, ये वाला तो जीरो हो गया वहां पिछले उसमें, ये इसको सिग्मा मान लिया, तो ये यहाँ आ जाएगा और 2 ऊपर चला गया, तो ये 2 पाई, ये देखो ये आ गया, यहाँ पर लिख दिया हमने 2 टाउ अपॉन सिग्मा। अब इसकी आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ, जब वैल्यू रखोगे अभी जो निकाली है हमने टी के और इसमें, तो सब कट के सिर्फ टी और एम बचेगा। तो अगर a shaft is subjected to the twisting as well as bending moment, so directly you can use this formula tan 2 theta is equal to t upon m। अब फिर आपको इसको तो पता है ये फॉर्मूला, थीटा 2 90 ऐड कर दीजिए तो मिल जाएगा। एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यू कैन कैलकुलेट, ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद ही होगा, है ना, याद ही होगा, सिग्मा बाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, सिंपल वही, वैसे ही हम इसमें भी वैल्यू रख देंगे किसकी, पाई सिग्मा की और इसकी। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 32m अपॉन पाई डी क्यूब, 16 पाई डी क्यूब अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 पाई डी क्यूब एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है याद करने में दोनों को, देखो जरा थोड़ा सा डिफरेंस है। सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यू कैन द प्रिंसिपल स्ट्रेस इससे कैलकुलेट करोगे 16 पाई डी क्यूब, यहाँ एम आ जाएगा, तो यहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो ये वाला पार्ट हटा देना, देखो ये वाला एम, इसको तो प्लस माइनस लगा के ये ऐसे लिख लेना, गेटिंग माय पॉइंट। सो आपको याद रहेगा 16 पाई डी क्यूब एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, वो 16 पाई डी क्यूब एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप रखिए। अब डायरेक्टली फिर इसके बाद वी कैन सॉल्व द ए न्यूमेरिकल, हम इसके थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल पार्ट, इसके थ्रू हम वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होगा।
बहुत आसान है, फार्मूला बेस्ड है, आप लगा ही सकते हो। जो भी फार्मूला आपने निकाला है अभी, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई विद हियर, सो वी कैन गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ here. So a shaft section diameter is given 100 mm diameter is subjected to a bending moment का मतलब m is given and torque मतलब t दिया है, ठीक है। So find the maximum stress direct induced in the section and specify the position of the plane on which it act। इसका मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको निकालनी है और किस प्लेन में लग रहा है वो भी निकालना है। and find out the what the stress acting along the what the acting along can produce the same strain, okay, and take the Poisson's ratio is 0.25। so ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मजा आएगा। so let us see क्या क्या दिया है। d is given, m दिया है, t m दिया है, m का m is this much of न्यूटन, इसको mm में कन्वर्ट कर दीजिए अगर, सो ये हो जाएगा ऐसा, 3 यहाँ का 3 यहाँ का, तो 10⁻6 mm हो गया, 4 into 10⁻6। then you can also write this is 6, similarly इसको 6 into 10⁻6 mm भैया इसमें न्यूटन पर, भाई न्यूटन छूट गया इसमें। लेट अस सी वन करेक्शन इज देयर, सो हियर मस्ट बी न्यूटन mm, दोनों में, इसमें भी न्यूटन mm। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यहाँ था न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर, तो ये कन्वर्ट होने के बाद न्यूटन mm होगा, ये एक चीज मिसिंग है, लेट्स करेक्ट कर लीजिए आप। सो लेट अस सी, यहाँ देखिए सिंपल फॉर्मूला भी है, सिग्मा 1 to 16 pi d cube m plus minus under root m square plus t square, and both value we have, you can see value of d's we have and value of m we have and t we have, put all respective value, so we can calculate, or after solving this sigma 1 is equal to 57.1 megapascal, ठीक है। एंड सिग्मा टू क्या करोगे, अब माइनस, पहले प्लस लिया अब माइनस ले लोगे, तो ऑब्वियसली 57 से तो कम ही आने वाला है, सो दिस वुड बी माइनस 16.35 मेगा पास्कल। तो माइनस का मतलब ये हो गया कि इट इज इन कंप्रेशन। सो अगर आप ये माइनस हटा दोगे तो ब्रैकेट में सी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस ऑल्सो। सो लेट्स सी, and also it is asked calculate the orientation of the plane or maximum stress, so we can calculate, then we just derived this formula tan 2 theta 1 is equal to t upon m, where t is equal to what, 6 into 10⁻6, ठीक है, 10⁻6 दोनों में था, तो हमने काट के पहले ही डायरेक्ट लिख दिया 6/6/4, and you just calculate that, so you will get the plane of orientation of first principal stress theta 1 28.15 and theta 2 would be 28.15 plus 90, so this would be the 118.15. So question is asking, the last part is that the major principal strain, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, आप समझिए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन आपका क्या है। प्रिंसिपल स्ट्रेन का देखो, ये प्रिंसिपल स्ट्रेन है जो कि सिग्मा 1, जो वैल्यू आपका सिग्मा 1 की आई यहाँ पर आया है, आपको देखो जरा, लेट अस सी दैट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 इज 57.1, ओके, हाँ। So this value actually, the एक चीज और है यहाँ पर, let us see that the Poisson's ratio is given, हाँ। so हम क्या करेंगे यहाँ समझो, इसकी वैल्यू रखेंगे सिग्मा 1 माइनस ऑफ म्यू इज गिवन, ये देखो जरा म्यू दिया था ना 0.25, ये डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। सिग्मा 2 की वैल्यू ये निकाली थी, ये माइनस देखो, तो ये नाउ इट्स बिकम 61.1875 की ई। तो दिस इज ए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला,
एंड फ्रॉम वेयर दिस फॉर्मूला इज कम, ये पॉइजन रिस्क वाला कॉन्सेप्ट किया था ना अपन ने, कि अगर एक इधर लग रहा है तो दूसरा इधर लग रहा है, तो व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ सेकंड वन ऑन द फर्स्ट वन. So this concept we have applied here. So we have got this relation. We already discussed this relation. If two-dimensional loading acting on a body, then what would be the value of stress? So we can calculate with the help of this formula. So this is here the sigma one. Sorry, epsilon one is equal to 61.187 E. So question saying पूछता है वो, if the sigma is the stress acting alone to produce the same strain, तो हम क्या करेंगे, this would be that, क्या करने वाले हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे इस सिग्मा के सिग्मा अपान ई के थ्रू, और ई कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट सिग्मा इज इक्वल टू 16.175. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है, और जो कि सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा. देखो ये सेम पहले स्ट्रेन निकाल लिया तुमने, अब क्या व्हाट द वैल्यू ऑफ सिग्मा विद प्रोड्यूस द सेम स्ट्रेन, तो आप सिग्मा पानी लिखते हैं, ई कैंसिल हो गया, देन इट्स बिकम 16.1875. सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, इफ डायरेक्ट स्ट्रेस यू अप्लाई. और ये वाले क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, दीज आर नॉट डायरेक्ट, डायरेक्ट जो अब एक्सटर्नली लोड लगाने के कारण प्रोड्यूस होता है. सो डायरेक्ट स्ट्रेस एंड दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस. सो थैंक यू सो मच.